Coming to the today's experiment, we'll be performing the input and output characteristics of common emitter configuration. Common emitter is nothing but emitter is common to both input and as well as output. Here, emitter will be common for both input and well as output. You have only three terminals in the transistor. One is emitter, other one is base, other one is collector. If emitter is common to both input as well as output, you call it as common emitter configuration. If base is common to both emitter and both input as well as output, you will call it as common base configuration. If both, if collector is common to both input as well as output, you will call it as common collector configuration. Common collector configuration is also called as emitter follower because it just follows the emitter. Hence, it is also called emitter follower. Clear? And here in the this lab we will be performing on common emitter configuration. Common emitter is nothing but, if you see the BJT, you have terminal 1, terminal 2 and terminal 3, nothing but node 1, node 2, node 3. Here this node 1 indicates either emitter or base or collector. Based on the configuration it will change. It may be either emitter or collector or base. So one one node will be input, other node will be output, and the third node will be common to both input as well as output. Here the node 1 will be your input node and node 2 is your output node, whereas 3 is common for input as well as output. So if you see V1, this is V1 is a voltage across node 1 and as well as 2, hence this is input node, and V23 is common for both node 2 as well as node 3. Here V2 is output voltage, whereas if you see observe these two, 3 is common for both input as well as output. Hence this type of configuration is common. That depends on, suppose if this is emitter, if this is base and this is collector, then you call it as common emitter configuration because emitter is common. Suppose if the third terminal is base and the first terminal is emitter and the second terminal is collector, then you call it as common base because base is common. If the third terminal is neither emitter nor base, if it is collector, if it is collector, then this is common collector configuration, like that. The common node will decide which type of configuration is there. So in common emitter, the emitter will be the third node. In common base, a base will be your common node. In common collector, collector will be your common node. Whereas input node and output node for common emitter will be, input node will be base, output node will be collector. Similarly for common base, input node will be emitter, output node will be collector. Whereas common will be base. Whereas common will here will be emitter. Whereas common here will be collector. Input will be base and output will be emitter. These are the different types of configurations that are possible for your transistor. For each transistor, input is different and output is different and common terminal is different. These are the three possible combinations because only three terminals are present, either emitter or base or collector. So you will have three configuration. On this three configuration, you have different input as well as output, and there is common terminal like this. So here, what we are doing is we are plotting input as well as output characteristics. In input as well as output characteristics, while plotting input characteristics, the characteristics will be plotted between voltage and current. Input voltage and input current by taking output voltage as constant. Output characteristics are plotted by plotting between V output voltage as well as output current, output voltage and output current, and the common will be your base current, nothing but input current. So what you have learned, you will plot input characteristics of any configuration between input voltage and input current, the input current, whereas if you plot output characteristics between output voltage and output current. So but here you will keep input current as constant. Here you will keep input current as constant,
Here you will get output voltage as constant. Are you getting? Here you will keep output voltage as constant. Input characteristics of any configuration can be plotted by keeping the output voltage as constant and by plotting between V input and I input. Here V output and I output characteristics are plotted as output characteristics by keeping input current as constant. So if you take common emitter configuration, because this experiment is based on common emitter configuration, so I am taking this common emitter configuration in order to plot my output as well as input characteristics. So if you take common emitter configuration, my input is base and output is collector. So in common emitter configuration, input is base, output is collector. If input is base, then the voltage possible. So in the previous one, if you see, this is your BJT, this is input, output and common terminal. So if you take this BJT, common emitter, nothing but emitter is common. So your configuration will be like this. Your emitter will be common, your emitter will be common. So you are taking output at the collector, right? You are taking output at the collector and emitter is common to both input as well as output. Here base will be your input. So the voltage here VBE, the input terminal B and E, this voltage is input voltage. This voltage is input voltage and the current, input current is your base current. Here output current is your collector current. Common current is your emitter current. Here the output voltage is VCE. So what we have discussed, in order to plot input characteristics, you will plot between input voltage and input current. Nothing but you will plot voltage VEB or VBA, both are same. You will plot input characteristics between VEB versus IB and keeping which constant? Output voltage is constant. What is the output voltage? VCE. By keeping VCE constant, you will plot VEB minus versus IB. These characteristics are called input characteristics. Now coming to output characteristics. So in output characteristics, you will plot between output voltage and output current. Here the output current for common emitter is IC and output voltage is VCE. So you will plot the graph between VCE and IC by keeping input current is constant, because in order to plot this you will keep input current as constant. So coming to the input current, if it is common emitter configuration, input is base and output is collector. So input is base, nothing but your input current will be base current. So by keeping IB as constant, you will plot the graph between VCE and IC. That's how you will get output characteristics. This is the output characteristics and the previous one is your input characteristics. This is the thing you will be doing in this lab. So in this lab, you will plot input as well as output characteristics, input characteristics between VBE or VEB versus input current IB by keeping output voltage constant, nothing but VCE is equals to constant, and you will plot VCE versus IC and by keeping output input current as constant, nothing but base current as constant. This is how you will get input characteristics. This is how you will get output characteristics. Clear? This is about the common emitter configuration characteristics. एक सेकेंड सर, अभी नहीं, हाँ कर दो. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो होगा आपका कॉमन एमिटर बेस ऑफ फॉर बीजेटी. इसके लिए जो परफॉर्म रहेगा आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. फॉर दैट वी आर यूजिंग द वर्चुअल लैब. तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें वर्चुअल लैब स्टार्ट करते हैं. आ रही है सर आवाज? सर आ रही है आवाज? नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ. नहीं सर, मैंने नहीं करी. अच्छा ठीक है, मैं सबसे पहले हम लोग इसमें वर्चुअल लैब में
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब में जाएंगे. देन आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों को आज इसमें परफॉर्म करना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज बाइपोलर जंक्शन टाइप कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके लिए हम यहाँ पे इसके स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले अगर अपन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला मोटो इसमें जो है वो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, देन द ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब कभी भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात होगी तो या तो वो पीएनपी बेस्ड होगा या फिर एनपीएन बेस्ड. ठीक है. और उसका भी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका, या तो कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी या फिर कॉमन कलेक्टर या फिर कॉमन एमिटर. तो इसके लिए इसका दोनों का ही, चाहे वो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसका स्ट्रक्चर लेयर्स एंड सर्किट सिंबल, चाहे वो आपका पीएमपी हो, इन दोनों के लिए ही अपन इसमें परफॉर्म करेंगे. और तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अपन दिखाएंगे इसमें. जो सिंबल अपन दिखा रहे हैं इसमें ई बी एन सी, दैट इज एमिटर, बेस और कलेक्टर, इसी के कॉमन पॉइंट से अपन इसका स्टार्ट करेंगे आगे का परफॉर्म. ठीक है. जैसे कि ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में दोनों तरीके के इसमें बायसिंग रहेगी आपकी, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी. तो वो बेस करेगा आपका कि अपन कौन सा जंक्शन यूज कर रहे हैं. कौन सा जंक्शन यूज कर रहे हैं से मतलब ये है कि अगर अपन बेस एमिटर जंक्शन यूज कर रहे हैं या फिर बेस कलेक्टर जंक्शन यूज कर रहे हैं, उन दोनों पे डिपेंड करेगा. और अलग अलग जो रीजन रहेंगे इसमें वो रहेगा आपका कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और ब्रेक डाउन रीजन. वो आपका इसमें जीके नवीन सर और इसका थ्योरी अच्छे से बता देंगे इसके बारे में, क्योंकि वो आपका सिलेबस में भी कवर होगा. तो ये अलग अलग बेसिकली इसका कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन, ये चारों रहेंगे. इन दोनों के लिए ही, इन चारों रीजन के लिए ही अलग अलग इक्वेशन भी इसमें हुई है. अब अगर अपन इसमें स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर सर्किट. तो उसके लिए जो करंट यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं, दैट इज दो करंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. वो है आपका बेस टू एमिटर सैचुरेशन करंट आईईसी एंड बेस टू कलेक्टर सैचुरेशन करंट आईसीएस. और इसमें जो वोल्ट्समान कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी दी हुई है के. उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू भी इसमें रिलेशन निकलता है. ठीक है ना. तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी किसकी, बीजेटी की, फॉर कॉमन एमिटर. कॉमन एमिटर का मतलब ये है कि जो एमिटर, जैसे अपन ने यहाँ पे एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, इसमें जो कॉमन टर्मिनल जिसको अपन ने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, दैट टर्मिनल इज कॉमन एमिटर. ठीक है ना. तो उसके लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो परफॉर्म अपन करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में will be drawn with the help of voltage by varying the voltage of VCE for various values of VC that is collector to emitter voltage. तो इसमें जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनपुट में कौन कौन सी वैल्यू आपकी गिवन है करंट और वोल्टेज की, उन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा आपका. और VC को अपन इसमें कांस्टेंट रखेंगे. कांस्टेंट से मतलब ये है कि या तो उसको अपन 1 वोल्ट ले लेंगे या 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, वो डिपेंड करेगा आपका. ठीक है. एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपकी ये रहेगी इनपुट. और नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगी आपकी, वो रहेगी, वो बनेगी आपकी जो भी आपका आउटपुट टर्मिनल में आपके इसमें करंट और वोल्टेज सोर्स इसमें गिवन है, दैट इज कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. इन दोनों के बीच अपन इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे. और यहाँ पे जो अपन वेरी करेंगे, वी कैन वेरी द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट. ये है आपका इसका थ्योरी पोर्शन. देन इसके बाद आफ्टर दैट
प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में सबसे पहले जो अपन इसमें देख रहे हैं, वी विल सी द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि इस सर्किट में दिस सर्किट इज फॉर कॉमन एमीटर फॉर बीजेटी, और इसमें जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ड्रॉ करेंगे, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ सर, ये आपका जो स्क्रीन है ना वो वहीं पे है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे दिख रहा है ना वहीं पे है, आगे नहीं बढ़ रही है। आप रिप्रेजेंट करते हैं शायद। अच्छा अच्छा, मैं फिर से करता हूँ। क्योंकि वो उसी स्क्रीन पे अटक गया है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब आ गया, ठीक। हाँ तो थोड़ी के बाद अगर अपन प्रोसीजर पे जाएंगे, तो प्रोसीजर में सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म होगी इसमें आपका द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी फॉर कॉमन एमिटर सर्किट। तो कॉमन एमिटर सर्किट के लिए जो अपन इसमें सर्किट डायग्राम अपन यूज कर रहे हैं, सर्किट डायग्राम फॉर दैट सर्किट डायग्राम, दिस इज आवर सर्किट डायग्राम। तो इसमें अपन को दिख रहा है कि कॉमन एमिटर इसमें कनेक्ट किया हुआ है फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस। सप्लाई वोल्टेज बेस साइड से अपने ली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी बेस साइड से सप्लाई वोल्टेज आएगी, वहां से अपन इसमें इसकी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये है कि इनपुट में जो भी आपकी वैल्यू गिवन है सर्किट में, उस वैल्यू के बीच अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। तो नंबर 1 इज आईबी, जो बेस करंट है उसके बीच रहेगी, एंड द सेकंड वन इज जो एमीटर और बेस के बीच में जो अपना वोल्टेज इसमें गिवन है वीबी, इसके बीच रहेगी, ठीक है ना। और इसी के साथ इसमें इनपुट सर्किट में भी फॉर बेस टू बेस वोल्टेज और कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ पे अपने दो रियोस्टेट इसमें कनेक्ट किए हुए हैं। इनिशियली इन दोनों रियोस्टेट की वैल्यू जब अपन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले इसको 1 ओम में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले, बिकॉज जो वीसी दैट इज आउटपुट में जो आपका वोल्टेज है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, इसको अपन को वेरी करना है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट RH1, दैट इज अ वैल्यू ऑफ VBE, जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है अपन ने, इसको वैल्यू वेरी करेंगे अपन विद द हेल्प ऑफ RH1। और BCE जो वो सेकंड आउटपुट में जो वोल्टेज अपना गया हुआ है, उसको अपन वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ आउटपुट सर्किट रियोस्टेट RH2। तो इनिशियली इसको 1 वोल्ट अपन में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अपन विद द हेल्प ऑफ RH1 VBE को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि इसमें जो आपकी रीडिंग निकल के आ रही है किसकी, IB की, दैट इज बेस करंट की, और VBE जो अपन ने इसमें विद द हेल्प ऑफ RHE इसमें यूज किया हुआ है उसको। VBE की वैल्यू को अपन कितना भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये देखने लायक है कि जो VCE का जो वोल्टेज है वो इनिशियली सबसे पहले अपन RH2 की हेल्प से 1 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे। देन आफ्टर मल्टीपल रीडिंग्स जो आ जाएंगी आपकी फॉर कांस्टेंट VCE 1 वोल्ट वोल्टेज, उसको अपन IB और VBE के साथ फिर कनेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? सबसे पहले अपन लोग इसमें जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वैल्यू इसमें, इसका जो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस है उसको अपन देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में सबसे पहले अपन करेंगे इसमें बीजेटी की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ये आपका बीजेटी का कॉमन एमिटर के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें सर्किट डायग्राम है। इसके लिए सबसे पहले सर्किट अपन एक बार और देख लेते हैं। कॉमन एमिटर बेस है इसमें आपका जो सर्किट है, कलेक्टर बेस और एमिटर तीन टर्मिनल हैं, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर अपन यूज किया हुआ है। वीबीबी इनपुट वोल्टेज जो इसमें दिया हुआ है आपका। उसके बाद अपन ने रियोस्टेट इसमें लिया हुआ है वेरी करने के लिए किस कौन से वोल्टेज को, वीबीई का जो वोल्टेज है
बेस और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है उसको वेरी करने के लिए इसमें रियोस्टेट लगाया हुआ है। और इसी के साथ जो इस ब्रांच में करंट जो आपका फ्लो होगा दैट इज आईबी करंट। ये तो हो गया आपका इनपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट में सबसे पहले एक जो करंट जो फ्लो होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द आईसी दिस कलेक्टर ब्रांच, तो इसमें आईसी करंट हो जाएगा। और जो आउटपुट इसमें वोल्टेज अपन को मिलेगा दिस विल बी सी एंड ई, वोल्टेज बिटवीन सी ई, तो वीसी हो जाएगा। और इसी को अपन वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर एच टू, जो आपका कौन सा वोल्टेज है, वीसी। इज इट क्लियर टू ऑल? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले अपन को क्या करना है, दो जो कंट्रोल आपके इसमें है, कंट्रोलिंग लेवल है, वो है आपके दो रियोस्टेट दिए हुए हैं RH1 और RH2। तो इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर RH1 और RH2 को इनिशियली अपन क्या करेंगे, इसको 1 ओम में इसको सेट करेंगे। जैसे कि इसमें अपन ने इट विल सेट टू 1 एंड RH2 इज आल्सो सेट टू 1। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे इसमें, विद द हेल्प ऑफ RH2 जो आपकी वैल्यू है वोल्टेज की, दैट इज वीसी वोल्टेज है, उसको अपन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज में इसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका इसमें वोल्टेज रहेगा वो रहेगा इसमें आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज के लिए 1 वोल्ट। तो उसको अपन जो वेरी करेंगे, इट विल हेल्प वेरी विद द हेल्प ऑफ RH2। देखिए जैसे 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 अपन रेजिस्टेंस की इसमें वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसमें आपका VCE दैट इज कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज भी इसमें आपका बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो ये अपन ने इसको क्या किया, VCE को अपन ने यहाँ पे 1 वोल्ट में इसको फिक्स कर दिया लाइक दिस। ये ये दिस इज VCE फॉर 1 वोल्ट। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इसमें अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू आ रही है किसकी, बेस करंट की, कलेक्टर करंट की और बेस टू एमिटर वोल्टेज की, ये अपन को इसमें दिख रही है। इसमें एक और चीज ये है इंपॉर्टेंट की जो करंट की जो रेटिंग है, द रेटिंग ऑफ करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना? तो अब नाउ अपन क्या करेंगे, इसमें जो VBE का जो आपका वोल्टेज है उसको अपन चेंज करेंगे, क्योंकि बिकॉज इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वो अपनी 0.3 से अपनी अब इसमें ज्यादा लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसमें विद द हेल्प ऑफ RH1 अपन VBE को भी इसमें इंक्रीज करेंगे। जैसे 0.3 आ गई, मान लीजिए मैंने इसमें इसको 0.4 ले लिया। ठीक है ना? और इसको अपन ने ऐड टू टेबल कर दिया। तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज क्या है आपका इसमें, यहाँ पे 1 ओम, और RH1 और RH2 की हेल्प से जो आपकी वैल्यू आई है, RH2 से तो अपन ने VCE फिक्स कर दिया, और इसके लिए IB और VBE की वैल्यू इसमें अपनी लेफ्ट में जो आपका एक्सपेरिमेंटल टेबल है इस ये आपकी इसमें दिख रही है। फिर से अपन RH1 को इसमें वेरी करके, जैसे अपन ने यहाँ पे 20 लिया है, मान लीजिए मैंने इसको कितना ले लिया, यहाँ पे 30 ओम पे ले लिया। ठीक है ना? तो एक हो गई आपकी इसमें 0.6, उस वोल्टेज के लिए जो आपकी करंट की वैल्यू आ गई वो 4.713। नाउ अगेन इसको मान लो मैंने अब मान लो इसको अपन ने क्या ले लिया, अब 40 ओम के लिए ले लिया, तो इसमें 0.8 ओम आ गया एंड 6.2 इज द वोल्टेज। तो ये अलग अलग इसमें अपन ने इसमें रीडिंग ली है। सिमिलरली फिर से अगर इसको अपन RH1 को इसको
बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू, मान लीजिए अब मैंने 50 ओम पे ले लिया इसको और 1 इसमें आ रहा है, तो ये इसको भी अपन ऐड ले लिया इसमें, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें वैल्यूज अपन इसमें ले रहे हैं। देखो इसमें आईसी की और वीसीई की वैल्यू ये अभी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। क्यों 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 क्योंकि अपन ने वीसीई को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है फॉर 1 वोल्ट। तो जो अपन ने मान लो इसमें अब अगर मैं इसको 70 ओम्स के लिए लेता हूँ, फिक्स करता हूँ, दैट इज जो 1.4 या कोई सी भी ले लो, तो ये अपनी इसमें आ गई। तो जैसे ही मैं ये जो अपने इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज के लिए 1 वोल्ट के लिए करंट की, बेस करंट की और बेस टू एमिटर वोल्टेज की रीडिंग आई है, इसको जैसे ही हम प्लॉट करेंगे तो जो आपका इसमें ग्राफ निकल के आएगा लाइक दिस। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको इस ग्राफ में कि जैसे जैसे आपने क्या किया, आपने VBE का जो वोल्टेज है, बेस टू एमिटर वोल्टेज की वैल्यू इसमें अपनी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे इसमें दिख रहा है आपकी जो बेस करंट की वैल्यू जो माइक्रो एम्पियर में है वो भी आपका इसमें वोल्टेज और करंट के फॉर्म में इसमें शो हो रहा है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया कि इसके लिए आपका 1 वोल्ट के लिए। सिमिलरली वी कैन प्रिंट दैट वेवफॉर्म एंड सर्किट डायग्राम एंड दैट एक्सपेरिमेंटल टेबल। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर से इसको जो अपन जैसे अपन इसको कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को 1 वोल्ट के लिए किया हुआ है, नाउ अगेन अपन इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर द वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट। इनिशियली तो अपन ने 1 ओम में इसको सेट कर दिया था, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको रियलाइज करने के लिए ये आपने यहाँ पे अब इसमें 2 वोल्ट के लिए कर लिया ऐड टू टेबल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अपन ने इसमें अभी जो भी अपने इसमें वैल्यू आ रही होगी RH1 की, RH2 की, इसको भी अपन को इसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ VBE मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3। तो अभी अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अभी 0.26 के लिए 2.9 आ रही है, और डिफरेंट डिफरेंट मान लो मैंने इसको अब RH1 को बढ़ाया तो जो वोल्टेज आपका आया है 0.48, फिर इसको और धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे इसकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो माइक्रो एम्पियर जो करंट है वो भी आपका इसमें इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है 41 एम्पियर का ओम के लिए। सिमिलरली 50 ओम के लिए जो वैल्यू है आपकी BB 1 वोल्ट ये ले लिया अपन ने, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो जो BB की वैल्यू आई है वो आपकी 1.32 वोल्ट ये आया है। फिर से अपन ने इसको बढ़ाया यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी आपकी 1.44। तो ये जैसे जैसे अपन रियोस्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वैसे आपका बेस टू एमिटर वोल्टेज इसमें चेंज हो रहा है। तो जो ग्राफ जो आपका बनेगा यहाँ पे, दैट इज जैसे अपन इसको प्लॉट करेंगे तो उसमें जो आपकी वैल्यू आएगी अनदर सेट, पहला सेट जो था वो किसके लिए था आपका VC फॉर 1 वोल्ट, नाउ दिस इज फॉर 2 वोल्ट। इसी तरीके से आप 3 वोल्ट 4 वोल्ट के लिए इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना? नाउ इसी के बाद जो सेकंड जो है आपका, ये तो था आपका कौन सा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन इसमें प्रोसीजर देखेंगे किसका, फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में सब वो भी उसमें भी आपका प्रोसेस यही रहेगा, बस अब इसमें चेंज ये आ जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जैसे वहां पे अपन ने जो जब अपन ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म किया था तो उसमें VCE का जो वोल्टेज है उसको अपन ने फिक्स कर दिया था अलग अलग रीडिंग के लिए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 3 4 वोल्ट। सिमिलरली अब यहाँ पे अपन जो इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो बेस करंट की जो वैल्यू है आपकी IB, इसकी वैल्यू को अपन फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है ना? मतलब उसको अपन 15 माइक्रो एम्पियर के लिए इसको एडजस्ट करेंगे, और जो आपका
वेरी जो करेंगे अपन, वो अपन किसको करेंगे, VCE की वैल्यू को वेरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ RH2। तो अपन को क्या मिलेगा इसमें अपन को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। इसमें अपन देखेंगे कौन सा VCE का वोल्टेज और IC करंट, ठीक है ना, और इसको अलग अलग सेट के साथ इसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसे परफॉर्म करते हैं। वी कैन यूज द सिमुलेशन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ दिस it will open soon. Now this is the circuit diagram of for the BJT कॉमन एमिटर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी मिलेगी जो आपकी, वो किस किस के बीच मिलेगा आपको, VCE और IC, इन दोनों के बीच आपको इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अपन शो करेंगे। तो इनिशियली क्या करेंगे अपन, जो अपना इसकी वैल्यू चेंज, एक सेकेंड इसको रीलोड करता हूँ, वर्चुअल लैब के वेबसाइट में थोड़ा सा वो होगा। तो जो इसमें कॉमन एमिटर के लिए जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन इसमें ड्रॉ करेंगे वो आपका आएगा लाइक दिस। तो इनिशियली जो आपका RH1 और RH2 अपन इसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन है इनिशियली सेट रियोस्टेट RH1 एंड RH2 इन 1 ओम। तो सबसे पहले जो अपन RH1 और RH2 को सेट करेंगे वो अपन किस में करेंगे, इसमें आपका 1 ओम के लिए, ये अपन ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, जो बेस करंट है उसको अपन 15 माइक्रो एम्पियर में एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ RH1। तो यहाँ पे अभी जो आ रहा है वो आपका 10.29 आ रहा है। तो RH1 को इसमें एडजस्ट करेंगे और इसमें जैसे एडजस्ट करेंगे तो ये आ गया आपका, इसमें जो बेस करंट की वैल्यू जो आई है डेट विल बी 15 माइक्रो एम्पियर। फिफ्टीन पॉइंट नाइन 14.92 में थोड़ा सा आ रहा है ये। चलिए कोई नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सा बस, उसके आसपास 15 के अप्रोक्स ले लेते हैं इसको। मान लीजिए अपन ने 15.35 माइक्रो एम्पियर के लिए ले लिया। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इसमें अपन को वेरी करना है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, जो आपका आउटपुट में दिया हुआ है VCE, और उसको वेरी करेंगे किसके हेल्प से, अपन RH2 की हेल्प से। ठीक है ना, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी अपन 0.3 से ज्यादा ही लेंगे। तो ये अपन ने वेरी कर दी इसकी वैल्यू। जिस मान लो मैंने इसको सबसे पहले क्या ले लिया, इसका 1 वोल्ट पे ले लिया। ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी रीडिंग आई है किसकी किसकी, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज के में इसमें दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आई है आपकी 48.14। तो इसमें जो अपन रीडिंग नोट करेंगे वो अपन ने कौन सी रीडिंग करी है, जो आपका करंट इसमें निकल के आया है 48.14, वो अपने, और इसी के साथ अपन क्या करेंगे, इसमें अलग अलग डिफरेंट इसको RH2 को लेके किसको वेरी करेंगे,
VCE की वैल्यू को, मान लो मैंने अभी 1.1 ले लिया, अब मान लो मैंने इसको क्या ले लिया, अब इसमें 2.2 ले लिया। 2.2 के लिए जो आपकी करंट आई है वो 58.68 मिली एम्पियर आ गया। सिमिलरली मैंने मान लो इसमें 3.2 के लिए ले लिया, या कोई कोई भी ले सकते हैं अपन, 3.8 के लिए ले लिया तो वो आपकी आ गई इसमें 60 मिली एम्पियर। सिमिलरली 5.4 ले लिया यहाँ पे। तो ऐसे ही अपन इसको रियोस्टेट की वैल्यू को वेरी करके, जो प्रैक्टिकली जो आपका रियोस्टेट अवेलेबल है उसको वेरी करके अपन इसमें वोल्टेज की वैल्यू को इसमें चेंज कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो कहाँ दिख रहा है वो आपका आईसी में जो करंट आपका इसमें गिवन है वो आपका इसमें दिख रहा है। जैसे ये हो गया आपका डिफरेंट डिफरेंट इसमें वोल्टेज के लिए टेबल। जैसे ही अपन इसमें इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करेंगे, जो अपन ने इसमें 4-5 रीडिंग ली हुई है, व्हेन प्लॉटिंग दिस, तो इसमें यहाँ पे अपन को इसकी कलेक्टर करंट जो आपका इसमें आ रहा है और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज उसकी वैल्यू अपन को दिख रही है। ठीक है ना। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जो आपकी करंट की वैल्यू है वो आपकी इसमें, अब इसमें आपकी बिल्कुल कांस्टेंट इसमें करंट आपको मिलता जा रहा है। तो ये इसमें इसका एनालिसिस है इसके आउटपुट का। ये तो हो गया किसके लिए, आपका जब अपन 15 एम्पीयर लिया। सिमिलरली जब अपन RH1 को इसमें चेंज करेंगे और अपन अब कौन सा ले लेंगे, मान लो मैंने इसको ले लिया 20 या फिर 20 के नियर, मान लो मैंने 20.42 इसमें माइक्रो एम्पीयर ले लिया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें RH2 की वैल्यू को चेंज करूंगा जिससे कि मेरे को वोल्ट मीटर की वैल्यू ही इसमें मिले, जो आपका इसमें आउटपुट वोल्टेज इसमें आपका गिवन है। ठीक है ना। मान लो मैंने 0.8 से स्टार्ट किया इसमें, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 61। सिमिलरली एक एक करे इसमें, जैसे मैं इसमें ले ले रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज VC जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, वो कलेक्टर करंट आपका कितना आ रहा है वो इसमें परफॉर्म हो रही है। तो इसको जैसे हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ भी आपका दिखेगा कि आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ VC उसके नियर ही आपकी कलेक्टर करंट की वैल्यू इसमें कांस्टेंट या अप्रॉक्सी इसमें फ्लो होगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे 0.8 में कितना था 61, जैसे मैंने इसमें 2 वोल्ट लिया हुआ है तो इसके लिए आपकी वैल्यू आ गई 89, 90, 91, उसी के साथ नियर अबाउट ही है। तो यही आपका सिमिलरली अलग अलग डिफरेंट सेट अपन ले सकते हैं 40 माइक्रो एम्पियर के लिए या 60 के लिए। तो ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी थी जो कि अपन को इसमें देखना है फॉर दैट कॉमन एमिटर इज दिस। इसमें अपन ये वाला क्विज भी अपन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्विज के लिए आप लोग के पास भी इसकी लिंक गिवन रहेगा कि अपन ने जो भी अपन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा बेस हो रहा है उसका या कोई है, इसको भी अपन करके अपन लेवल अपन दे सकते हैं कि जो आपने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यही था आपका इसका प्रोसीजर फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ वापस GK नवीन कुमार सर को। सर। यादव जी, so आप बता। मैं बोले शो सर कर बोले। रहा हूँ आप स्क्रीन, आप वो किट वाला वो कैसे बताता है बता दीजिएगा ये।
हाँ जैसे दिया है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है ये तो खुल रहा है ना? किट खुल रहा है ना? नहीं खुल रहा सर। यस सर, खुल रहा है, खुल रहा है, ठीक है। खुल रहा है। अभी या मैं बड़ा वाला इमेज खोल देता हूँ। ये हाँ सर, अब सही दिख रहा है। this is your C amplifier kit, and here you are taking the input, you are giving the input, and here you will be taking the output. This is Darlington, right? Yeah. एक सेकेंड, आप दिख रहा है यादव जी? हाँ सर, दिख रहा है। वो किट के बारे में बता दीजिएगा, फिर वो मैं theory शुरू करता हूँ। हाँ उसमें दिखाया था, उसको सर रिपीट कीजिए ना, जो उसमें रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग अभी डाउनलोड नहीं हो रही है ना? उसमें जो आवाज नहीं आती वो बोलता है। रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं हो रही है। उसमें कनेक्शन दिए हुए हैं। रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं हो रही है। आप किट के बारे में बता दीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग चला लेते हैं, जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो तब तक मैं थियरी पढ़ा दूंगा। हाँ हाँ, तो किट के बारे में राइट लेफ्ट साइड में V1 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक पॉट दिया हुआ है, उसके ऊपर ही रेजिस्टेंस 1 k ओम और 100 किलो ओम के तो कनेक्शन दिए हुए हैं। साथ में फिर ट्रांजिस्टर दिया हुआ है BC107 उसके ऊपर I1 के लिए एमीटर है, डिजिटल एमीटर लगा हुआ है। V1 V2 के लिए डिजिटल वोल्ट मीटर लगा हुआ है। I2 के लिए डिजिटल एमीटर लगा हुआ है। साथ में ही सेकेंड, जब यहाँ पर सेकेंड पॉट के सामने ऊपर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और इधर V2 जो वेरिएबल है। एक बार हम V1 को वेरी करेंगे, फिक्स कर देंगे 0 के लिए, फिर 1 वोल्ट के लिए, फिर सेकेंड 2 वोल्ट के लिए, इस तरह से, और उसकी रीडिंग्स ले लेंगे। जब रीडिंग्स लेके उसके बाद उसमें ड्रॉप प्लॉट कर देंगे। सर इसमें कनेक्शंस वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कनेक्शंस वाला एक्चुअली डाउनलोड हो नहीं रहा है, वो यही है। हाँ, क्योंकि कनेक्शंस फिर से यहाँ दिखाएंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी सर। हाँ, खुल गया। दिख रहा है सर? हाँ ठीक है। हाँ सर, दिख रहा है। So connections are done. Now we'll turn on the kit. Now we'll have 3 displays. One display will be showing the current, other will be showing the voltage, and this one also showing the output current, but we'll discuss this in the output characteristics. In the input characteristics, we'll be noting the VBE as well as IB. Before that, we'll set a VCE voltage of 2 volts. So the connection of VCE is connected to V2, hence I am changing the knob from V1 to V2. After changing V2, I will set this value as 0 volts. First I will do it for 0 volts. After setting VCE as 0 volts, now I will change this V2 to V1. After changing it, now I will vary this voltage. So this voltage I will vary and find out IB as well as VB. This is VBE, this is IB.
Next, increase again VBE and IB, again VBE and IB. Like that, you can take it for 0.7 volts. 0.7 volts is the maximum VBE you will take, and this is the IB, different values. This VBE and IB will give the input characteristics. Okay. So connections are done. Now we'll turn on the kit. Now we'll have three displays. One display will be showing the current, other will be showing the voltage, and this one also showing the output current, but we'll discuss this in the output characteristics. In the input characteristics, we'll be counting the VBE as well as IB. Before that, we'll set a VCE voltage of 2 volts. So the connection of VCE is connected to V2, hence I am changing the knob from V1 to V2. After changing V2, I will set this value as 0 volts. First I will do it for 0 volts. After setting VCE as 0 volts, now I will change this V2 to V1. After changing it, now I will vary this voltage. So this voltage I will vary and find out IB as well as VBE. This is VBE, this is IB. Next, increase again VBE and IB, again VBE and IB. Like that, you can take it for 0.7 volts. 0.7 volts is the maximum VBE you will take, and this is the IB, different values. This VBE and IB will give the input characteristics. Okay. We have done the connections of the experiment. Here we are finding input characteristics as well as output characteristics of common emitter configuration. In input characteristics, we'll plot the graph between IB as well as VBE when VC kept as constant. We'll keep VC as constant, and then we'll change the potentiometer to find out different values of IB as well as VBE. After noting the values of IB and VBE and IB, then we'll plot the graph for input characteristics. You can see in the tabular column, we'll be finding like this. Here, by keeping VC constant, VC is equals to 0 volts, we'll take different values of VBE as well as IB. For different values of VBE maximum will be 0.7 as this is silicon made transistor. And here next step, we keep VC as common emitter voltage as 1 volt, and we'll repeat the same procedure by taking VBE as well as IB values. By plotting VBE as well as IB for VC is equals to 0 and plotting VBE versus IB when VC is equals to 1 will give you the input characteristics of your common emitter configuration. See, for VC is equals to 0, you will get graph something like this with respect to VBE, and this is IB and this is VBE. Like that, we will get another characteristics for VC is equals to 1. Similarly, you can do it for VC is equals to 2, VC is equals to 3, like that. You can do it for any number of VC values, but we'll plot the graph between VBE in the x-axis and IB in the y-axis. So the connections are done. Now the thing is, here we have 3 displays. In this 3 displays, one will be showing. Now in output characteristics, we'll plot between VCE as well as this is IC, not IB. This is change. This is not IB. This is IC.
and this is IB. IB will put constant for different values of IB. We will plot, suppose 10 microampere or 20 microamperes, like that. We'll plot for different voltage as well as current, output voltage as well as output current. Here the output voltage is VCE and output current is IC. We'll keep the input voltage as constant by keeping different values. By keeping 10 microampere as constant, we'll plot the graph between VCE as well as IC. Similarly, we can change it to another current value of input current, and we'll plot the graph between VC as well as IC. Similarly, you can change it for n number of values. We'll get, as you go on increasing the value of IB for this values, you will get graph in this fashion. Clear? Now we'll perform. So I'm keeping 5 microamperes as IB. This is my 5 microamperes of IB I have took. Now by changing this, we'll note the values of IC. We'll note the values of IC. This is IC as well as VCE. VCE will take different values and IC will know. For IB is equals to this much. Again we change the IB and then we'll note the values of VCE as well as IC. VCE, IC, VCE value and IC value. This is in microamperes. Like that, we'll change the different values for VCE and 10 volts. Like that, we'll plot the characteristics of your output characteristics. This is how you will get the output characteristics by taking the different values of VCE and IC. IC will be obtained from this display. VCE will be obtained from this display. From this display, we will get VCE, and from this display, we will get IC. And IB we have kept constant of some microampere, whether it is 3 microampere or 4 microampere or 10 microampere, 20 microampere or 50 microampere, like that. We'll keep different values of IB, and we'll take the readings like this. This is how we'll plot the output characteristics. After noting down this table, by using these values, we will plot the graph between VCE and IC. You will get the graph like this. This is about input characteristics, and this is your output characteristics. Clear? This is common emitter configuration circuit. So we'll connect here. This is V1 and this is V2. This is in this kit. This is V2 and this is V1. And here we have collector base emitter here, and we have V1 voltmeter here, V2 voltmeter here. This is the voltmeter 1, voltmeter 2, ammeter 1, ammeter 2, ammeter 2 I2, ammeter 1 I1. Clear? Now we'll start the connection from here. So connecting positive to 1 kilo ohm, positive to 1 kilo ohm. Now this is the first connection, and from second end of the resistor to the ammeter positive is here. Next, ammeter negative to voltmeter 1 positive, ammeter negative to voltmeter 1 positive. These are two present. You can either connect to here or here, both are interconnected. And connecting voltmeter negative to connecting voltmeter negative to the negative terminal of this one. This will supply voltage. This will be V1. And we have base connected to positive or ammeter negative. Both are same. So we'll connect it to base connected to voltmeter positive. Voltmeter positive will be connected. So this is how the connections are done from this side. And we have
connections negative to voltmeter negative, that will connect, and emitter to negative there is one more connection from emitter to voltmeter negative, or you can connect directly to V1. What are this? This connection has been done. Now we will connect this one. Connecting V2 across collector and emitter. Connecting V2, V2 is here between collector as well as emitter. Emitter second terminal to voltmeter negative. Now this connection. Now connecting ammeter positive to collector. Connecting ammeter positive to collector. Ammeter positive. Next ammeter negative to 1 kilo ohm resistor. Ammeter negative to 1 kilo ohm resistor. Next 1 kilo ohm second end to positive terminal of V2. Next negative terminal of V2 connected to either emitter or voltmeter V2. We connected to V2. This is how we have finished the connection. Now the connection has been done. Now next we will be performing or noting the input as well as output parameters in order to plot the input as well as output characteristics. Thank you. So we'll repeat the same video so that you may get good knowledge on connections. This is common emitter configuration circuit. So we'll connect here. This is V1 and this is V2. This is in this kit. This is V2 and this is V1. And here we have collector base emitter here, and we have V1 voltmeter here, V2 voltmeter here. This is the voltmeter 1, voltmeter 2, ammeter 1, ammeter 2, ammeter 2 I2, ammeter 1 I1. Clear? Now we'll start the connection from here. So connecting positive to 1 kilo ohm. Positive to 1 kilo ohm. Now this is the first connection, and from second end of the resistor to the ammeter positive. Ammeter positive here. Next ammeter negative to voltmeter 1 positive. Ammeter negative to voltmeter 1 positive. These are two present. You can either connect to here or here. Both are interconnected. And connecting voltmeter negative to connecting voltmeter negative to the negative terminal of this. This will be P1. And we have base connected to positive or ammeter negative. Both are same. So we'll connect it to base connected to voltmeter positive. Voltmeter positive will be connected. So this is how the connections are done from this side. And we have connections negative to voltmeter negative, that will connect, and emitter to negative there is one more connection from emitter to voltmeter negative, or you can connect directly to V1. So this connection has been done. Now we will connect this one. Connecting V2 across collector and emitter. Connecting V2 is here between collector as well as emitter. Emitter second terminal to voltmeter negative. Now this connection is there. Now connecting ammeter positive to collector. Connecting ammeter positive to collector. Ammeter positive. Next ammeter negative to 1 kilo ohm resistor. Ammeter negative to 1 kilo ohm resistor. Next 1 kilo ohm second end to positive terminal of V2. Next negative terminal of V2 connected to either emitter or voltmeter V2.
which connected to VT. This is how we have finished the connection. Now the connection has been done. Now next we will be performing noting the input as well as output parameters in order to plot the input as well as output characteristics. Thank you. So this is about the connections and the perform a virtual lab also you have completed. So you will perform the same using the virtual lab on your own. And if you have any doubts, you can